Assalamu alaikum. I am Tahira Abrar, lecturer visual impairment from Government Training College for the Teachers of Blind, Lahore. Today we will learn the topic strabismus 4.5, chapter number 4, eye condition and their treatment. First of all, we will try to know what is strabismus, crossed eyes और squint. हम इसको स्क्विंट भी कहते हैं, स्ट्रॉबिस्मस भी कहते हैं, क्रॉस्ड आइज़ भी कहा जाता है। इसकी जो प्रॉपर हम अगर इसको डिफ़ाइन करें, क्रॉस्ड आइज़ क्या है? क्रॉस्ड आइज़ और स्ट्रॉबिस्मस इज़ अ कंडीशन इन विच बोथ आइज़ डू नॉट लुक एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम. It usually occurs in people who have poor eye muscle control, are very far-sighted. 6 muscles attached to each eye to control how it moves. The muscles receive signals from the brain that direct their movements. Normally the eyes work together so they both point at the same place. When problems develop with eye movement control, an eye may turn in, out, up or down. The eyes turning may occur all the time or may appear only when the person is tired, ill or has done a lot of reading or close work. In some cases, in the same eye may turn each time. In other cases, the eye may alternate turning. Proper eye alignment is important to avoid seeing double for good depth perception and to prevent the development of poor vision in the turned eye. When the eyes are misaligned, the brain receives two different images at first. This may create double vision and confusion. But over the time, the brain will learn to ignore the images from the turned eye. Untreated eye turning can lead to permanently reduced vision in one eye. The condition is called amblyopia or lazy eye. Some babies' eyes may appear to be misaligned, but they are actually both aiming at the same object. This is a condition called pseudostrabismus or false strabismus. The appearance of crossed eyes may be due to extra skin that covers the inner corner of the eye or a wide bridge of the nose. Usually, the appearance of crossed eyes will go away as baby's face begins to grow. Strabismus usually develops in infants and young children, most often by age 3, but older children and adults can also develop the condition. People often believe that children with strabismus will outgrow the condition. However, this is not true. In fact, strabismus may get worse without treatment. A doctor of optometry should examine any child older than 4 months whose eyes do not appear to be straight all the time. And strabismus is classified by the direction the eyes turns. Inward turning is called esotropia, outward turning is called exotropia, upward turning is called hypertropia, and downward turning is called hypotropia. तो हमने देखा कि स्ट्रॉबिस्मस क्या है. आमतौर पर दोनों आँखों की जो अलाइनमेंट है वो सेम होती है और हमारी आंखें जब मूव कर रही होती हैं तो 6 एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स जो हैं वो आँखों की हेल्प कर रहे होते हैं मूवमेंट में. आंखें ऊपर नीचे दाएं बाएं जब हरकत कर रही होती हैं तो ये 6 एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स जो हैं वो इसकी हेल्प कर रहे होते हैं. 6 एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स में अगर हम उनकी बात करें तो दे आर अरेंज्ड इन 3 पेयर्स. अ पेयर ऑफ हॉरिजॉन्टल रेक्टाई, इसमें 2 तरह के हैं, मीडियल रेक्टस मसल्स है और लेटरल रेक्टस मसल्स हैं. जबकि अ पेयर ऑफ वर्टिकल रेक्टाई मसल्स जो हैं वो भी 2 तरह के हैं, सुपीरियर रेक्टस मसल्स और इन्फीरियर रेक्टस मसल्स. अ पेयर ऑफ ऑब्लिक मसल्स, ये भी 2 तरह के हैं, सुपीरियर ऑब्लिक मसल और इन्फीरियर ऑब्लिक मसल. अब ये जो 6 मसल्स हैं, ये 6 के 6 मसल्स जो हैं वो हमारी आँख की जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं उनमें हमारी मदद कर रहे होते हैं. ऊपर नीचे दाएं बाएं जब हम देख रहे होते हैं तो ये एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स जो हैं उनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है
कि हम डिफरेंट जो गेज़ होती हैं हमारी, उनमें ये हेल्प कर रहे होते हैं। और इसके अलावा ये जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स होते हैं, ये हमारी सिंगल बाइनोकुलर विज़न में भी बहुत हेल्प कर रहे होते हैं। मतलब दोनों आँखों से हम इमेज देख रहे होते हैं, लेकिन होता ये है कि जब हम ब्रेन में जाके हमें मैसेज मिलता है तो हमें एक ही इमेज जो है वो नज़र आता है, और ये इन्हीं एक्स्ट्रा मसल्स की वजह से होता है। जब इन मसल्स में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर क्या होता है कि डिफरेंट जो आई मूवमेंट्स हैं वो एक दूसरे से डेविएट करना शुरू हो जाती हैं। वरना तो ये होता है कि नॉर्मली हम देख रहे होते हैं तो ये होता है कि हमारी आँख जो है वो दो इमेजेस देख रही होती है, लेकिन हमें एक ही इमेज नज़र आता है। तो बाइनोकुलर सिंगल विजन की जब बात हो रही थी तो थोड़ा सा उसको भी बता देते हैं कि बाइनोकुलर सिंगल विजन क्या है। इट इज़ अ फ्यूजन ऑफ टू फोवियल इमेजेस। दोनों आँखों के फोवियल इमेजेस जो होते हैं उनकी फ्यूजन को हम बाइनोकुलर सिंगल विजन कहते हैं। इट इज़ अ फ्यूजन ऑफ टू फोवियल इमेजेस इनटू यूनिफाइड परसेप्शन ऑफ अ सिंगल इमेज। होता यह है कि दोनों आँखों के जो इमेजेस हैं वो ऑप्टिक नर्व के ज़रिए से एक ही ऑप्टिक नर्व के ज़रिए से ब्रेन तक जाते हैं, और ऑप्टिक क्याज़्मा पर नेज़ल जो साइड के फाइबर्स होते हैं वो एक दूसरे से क्रॉस होते हैं, और जब ब्रेन में जाते हैं तो वहाँ पर जाकर हमें एक ही इमेज जो है वो नज़र आता है। तो नॉर्मल बाइनोकुलर विज़न के लिए ज़रूरी होता है कि दोनों आँखों की विज़न जो है वो भी नॉर्मल हो, और विजुअल फील्ड जो है दोनों आँखों का वो भी नॉर्मल हो, और नॉर्मल होना चाहिए, और जो आँखों के मसल्स हैं वो भी सही तरह से काम कर रहे हों। तो ये जो 6 एक्स्ट्राओकुलर मसल्स होते हैं ये हमारी जो गेज़ होती है, गेज़ की जो डिफरेंट पोजीशंस होती हैं उनमें हेल्प कर रहे होते हैं। जैसे गेज़ की डिफरेंट पोजीशंस हैं, जैसे डेक्स्ट्रो वर्जन है, लीवो वर्जन है, डेक्स्ट्रो एलिवेशन है, लीवो एलिवेशन है, डेक्स्ट्रो डिप्रेशन है और लीवो डिप्रेशन है। ये तमाम चीज़ें आपके बेसिक पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं ताकि आपको पता चले कि असल में इंसान जब देख रहा होता है तो उसकी गेज़ की कितनी पोजीशन होती हैं। जैसे डेक्स्ट्रो वर्जन की हम बात करें तो ये होती है हॉरिजॉन्टली टू राइट, राइट लेटरल मसल्स जो है वो इसमें हेल्प करते हैं, और मीडियल रेक्टस मसल। लीवो वर्जन जो है वो हॉरिजॉन्टली टू लेफ़्ट है। डेक्स्ट्रो एलिवेशन जो है अपवर्ड एंड द राइट है। लीवो एलिवेशन जो है अपवर्ड एंड द लेफ़्ट है। डेक्स्ट्रो डिप्रेशन जो है वो डाउनवर्ड टू द राइट है, और लीवो डिप्रेशन जो है वो डाउनवर्ड टू द लेफ़्ट है। अच्छा जी, कुछ ऑक्यूलर मूवमेंट्स जो हैं वो भी आपको बताना ज़रूरी हैं जिनका ज़िक्र आएगा स्ट्रैबिस्मस के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल एबडक्शन है। एबडक्शन होती है टर्निंग द आई बॉल टू द नेज़ल साइड। एबडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल एडक्शन, ADDUCTION, एडक्शन क्या है? टर्निंग ऑफ द आई बॉल टू द नेज़ल साइड। फिर है एबडक्शन, ABDUCTION, टर्निंग ऑफ द आई बॉल टू द टेम्पोरल साइड। ठीक है, नेज़ल साइड पे अगर आई बॉल मूव करे तो उसे कहते हैं एडक्शन, ADD से, और अगर ये टेम्पोरल साइड पे बाहर वाली साइड पे मूव करेगा तो हम कहेंगे एबडक्शन। फिर सुप्राडक्शन क्या है? एलिवेशन, मतलब ऊपर की तरफ को, अपवर्ड टर्निंग ऑफ द आई बॉल। और इंफ्राडक्शन क्या है? डिप्रेशन, मतलब नीचे की तरफ को, अंदर की तरफ को, डाउनवर्ड टर्निंग ऑफ द आई बॉल। इंसाइक्लोडक्शन क्या है? सुपीरियर पोल ऑफ कॉर्निया, ये कॉर्निया का जो सुपीरियर पोल है उसकी तरफ को क्लॉकवाइज मूव करना, 12 क्लॉकवाइज जो आई बॉल मूव करना। और एक्साइक्लोडक्शन जो है, एक्साइक्लोडक्शन में क्या होता है? सुपीरियर पोल ऑफ द कॉर्निया 12 o'clock मूव्स लेटरली, ये लेटरली मूव करता है और वो मीडियली मूव करता है। ये तमाम चीज़ें इसलिए आपको बताई जा रही हैं ताकि आपको आई की मूवमेंट जो हैं उनके बारे में पता चल सके। जी, एम्ब्लायोपिया भी एक का जिक्र करते चलें कि एम्ब्लायोपिया क्या है। एम्ब्लायोपिया में क्या होता है कि इट इज़ यूनिलेटरल और रेयरली बायलेटरल डिक्रीज इन द बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्विटी फॉर विच देयर इज़ नो आइडेंटिफाइएबल ऑर्गेनिक कॉज इन आई और विजुअल पाथवे।
एम्ब्लॉयोपिया जो है आमतौर पर 8 से 9 साल की एज में होता है और मोस्ट सेंसिटिव पीरियड इसका है फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द लाइफ। और आमतौर पर इसमें ये होता है कि विजुअल एक्विटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है और पिन होल तक रह जाती है। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रैबिस्मस की। स्ट्रैबिस्मस या स्क्विंट भैंगापन या क्रॉस्ड आइज जिसको कहा जाता है वो क्या होता है? अभी हम पहले भी डेफिनेशन इसकी पढ़ चुके हैं, उसमें हमने देखा कि डेफिनेशन में बताती है कि ये क्या है, द मिस अलाइनमेंट ऑफ द विजुअल एक्सिस ऑफ द टू आइज, दोनों आँखों के जो विजुअल एक्सिस हैं उनकी मिस अलाइनमेंट हो जाती है, मतलब दोनों अलाइनमेंट एक अलाइनमेंट में नहीं होते, दोनों की अलाइनमेंट जो है वो डिफरेंट हो जाती है, वो दूसरे से डेविएट करते हैं। The misalignment of the visual axis of the two eyes is called squint or strabismus. Visual axis क्या होता है? It is an imaginary line which joins the objects of the regard to fovea centrals. तो अब हम देखते हैं कि इसकी अगर हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन की, तो स्ट्रैबिस्मस को क्लासिफाई कर सकते हैं हम एसोट्रोपिया, एक्सोट्रोपिया, हाइपरट्रोपिया और हाइपोट्रोपिया में। जो स्यूडो स्ट्रैबिस्मस है इसकी एपरेंट स्क्विंट होता है, बज़ाहिर वो स्क्विंट नज़र आता है लेकिन होता नहीं है, वो स्यूडो स्क्विंट कहलाता है। तो इसके अलावा लेटेंट स्क्विंट और मैनिफेस्ट स्क्विंट है। जो लेटेंट स्क्विंट है उसको हेट्रोफोरिया कहते हैं और जो मैनिफेस्ट स्क्विंट है उसको हेट्रोट्रोपिया कहा जाता है। हेट्रोट्रोपिया जो है उसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, कॉमिटेंट स्क्विंट और इनकॉमिटेंट स्क्विंट। कॉमिटेंट स्क्विंट और incomitant squint. Classification of strabismus include the frequency with which it occurs, either constant or intermittent. जो स्ट्रैबिस्मस है उसमें क्लासिफिकेशन इस बात पे भी डिपेंड करती है कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, स्ट्रैबिस्मस के अकर होने की फ्रीक्वेंसी क्या है, आइदर ये कांस्टेंट है मतलब मुस्तकिल तौर पर ये ऐसा हो रहा है, या फिर इंटरमिटेंट है, वक्फे वक्फे से ऐसा हो रहा है। वेदर इट ऑलवेज इन्वॉल्व द सेम आइज़, क्या दोनों आँखें इन्वॉल्व हैं या फिर एक आँख इन्वॉल्व है, वेदर इट इन्वॉल्व्स द सेम आइज़ और यूनिलेटरल। इफ़ द टर्निंग आई इज़ समटाइम्स द राइट आई एंड द अदर टाइम्स द लेफ़्ट आई, कि आँख कौन सी वाली इन्वॉल्व है, राइट आई इन्वॉल्व है या फिर लेफ़्ट आई इन्वॉल्व है। ट्रीटमेंट ऑफ द स्ट्रैबिस्मस में इंक्लूड आई ग्लासेस, प्रिज्म्स, विजन थेरेपी और आई मसल सर्जरी इफ़ डिटेक्टेड एंड ट्रीटेड। अगर स्ट्रैबिस्मस का ट्रीटमेंट उस सूरत में सही हो सकता है कि इसका डायग्नोस सही हो सके कि आया कि इसके जो मसल्स हैं उनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो कोशिश की जाती है कि उन मसल्स की सर्जरी कर दी जाती है, फिर आई ग्लासेस का इस्तेमाल किया जाता है, प्रिज्म और प्रिज्म से विजन थेरेपी भी कराई जाती है। इससे ये होता है कि जो स्ट्रैबिस्मस है उसका स्ट्रैबिस्मस का बेहतर ट्रीटमेंट हो सकता है और एक्सीलेंट रिजल्ट्स जो हैं वो आते हैं। What causes strabismus? स्ट्रैबिस्मस जो है क्या कॉजेज़ हैं? स्ट्रैबिस्मस कैन बी कॉज्ड बाय प्रॉब्लम विद आई मसल्स, द nerves that transmit information to the muscles, or the control center in the brain that directs eye movements. कि या तो ये होता है कि ब्रेन में कोई ऐसा इशू आ जाता है जिससे कि आई मूवमेंट कंट्रोल होती हैं, या फिर मसल्स में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, एंड इट कैन आल्सो डेवलप ड्यू टू अदर जनरल हेल्थ कंडीशंस और आई इंजरीज़। आँख में कोई इंजरीज़ हो गई हों या जनरल हेल्थ के इश्यूज चल रहे हों तब भी ऐसा हो सकता है। रिस्क फैक्टर्स फॉर डेवलपिंग स्ट्रैबिस्मस, रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? नंबर 1 है फैमिली हिस्ट्री, पीपल विद पेरेंट्स और सिबलिंग्स हु हैव स्ट्रैबिस्मस आर मोर लाइकली टू डेवलप इट, मतलब इनहेरिटेंस में स्ट्रैबिस्मस के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को रिफ्रैक्टिव एरर्स होती हैं जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, स्टिग्मेटिज्म, प्रेसबायोपिया, पीपल हु हैव सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ अनकरेक्टेड फार साइटेडनेस, आमतौर पर जिनको फार साइटेडनेस हो, हाइपरमेट्रोपिया हो और उनका जो उसकी करेक्शन ना की गई हो, तो फिर आमतौर पर उनको भी ये हो सकता है उनमें स्ट्रैबिस्मस डेवलप हो सकता है बिकॉज ऑफ द एडिशनल आई फोकसिंग, क्योंकि इसमें कोशिश की जाती है कि आई को फोकस करने के लिए एडिशनल एक एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से जो स्ट्रैबिस्मस हो सकता है। ताकि इसमें ये होता है कि ये फार साइटेडनेस है और करीब की चीज़ों को फोकस करने के लिए एडिशनल आई फोकसिंग होती है, जिससे
ऑब्जेक्ट्स को क्लियर देखने की कोशिश की जाती है और फिर पेशेंट को स्ट्रैबिस्मस हो सकता है। इसके अलावा मेडिकल कंडीशंस हैं, पीपल विद कंडीशन सच एज डाउन सिंड्रोम्स एंड सेरेब्रल पैल्सी और हैव सफर्ड अ स्ट्रोक और हेड इंजरी आर एट हायर रिस्क फॉर डेवलपिंग स्ट्रैबिस्मस। जिन लोगों को सन स्ट्रोक हुआ हो, इंजरी हो गई हो या कोई डाउन सिंड्रोम बच्चे हों तो फिर उनको काफ़ी रिस्क होता है कि वो स्ट्रैबिस्मस डेवलप कर लें। इसके अलावा बहुत सारे स्ट्रैबिस्मस की टाइप्स हैं जो कि एडल्ट्स में डेवलप हो सकती हैं, बट टू मोस्ट कॉमन टाइप्स जो हैं वो हैं एकोमोडेटिव एसोट्रोपिया एंड द अदर इज़ इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया। जो एकोमोडेटिव एसोट्रोपिया है उसके बारे में कहा जाता है कि इट इज़ ऑफन अकर्स बिकॉज ऑफ अनकरेक्टेड फार साइटेडनेस। The eye's focusing system is linked to the system that controls where the eyes point focus. People who are farsight are focusing extra hard to keep images clear. मतलब जो हाइपरमेट्रोपिया का शिकार होते हैं वो लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि करीब की चीज़ों को देखने के लिए एक्स्ट्रा फोकसिंग एफ़र्ट लगाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि वो चाहते हैं कि उनका जो करीब के इमेजेस हैं वो क्लियर हों, लेकिन इसके एक्स्ट्रा फोकसिंग की वजह से क्या होता है कि उनकी जो अकोमोडेशन है वो ख़राब होती है और उनकी आई की अलाइनमेंट सही नहीं रहती, जिसकी वजह से उनको स्ट्रैबिस्मस हो सकता है। दिस में कॉज द आईज टू टर्न इनवर्ड। सम सिम्टम्स ऑफ accommodative esotropia may include seeing double, closing or covering one eye when doing close work and little or turning the head। मतलब या फिर ये होता है कि टर्निंग द हेड टर्न कर लिया जाता है, टिल्टिंग की जाती है, क्लोज वर्क करते हुए वन आई क्लोज कर ली जाती है, ये डबल सीइंग हो जाती है, मतलब डबल ऑब्जेक्ट्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। जब इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया है उसमें ये होता है कि ये जब डेवलप होता है व्हेन अ पर्सन कैन नॉट कोऑर्डिनेट बोथ आइज टुगेदर। जब एक किसी भी पर्सन की दोनों आँखें कोऑर्डिनेट नहीं करती, द आइज में पॉइंट बियॉन्ड द सब ऑब्जेक्ट बीइंग व्यूड। पीपल विद इंटरमिटेंट exotropia may experience headaches, difficulty reading and eye strain. They also may close one eye when viewing at a distance or in bright sunlight. तो ऐसे लोग होते हैं जो ब्राइट सनलाइट में जाते हैं वो वन आई क्लोज कर लेते हैं, इनको हेडेक होता है, रीडिंग डिफ़िकल्टी होती है और इंटरमिटेंट जो हैं वो अटैक्स होते हैं एक्सोट्रोपिया में। Strabismus is especially common among children with disorders that may affect the brain such as cerebral palsy, Down syndrome, hydrocephalus, brain tumors, प्रीमेच्योरिटी। आमतौर पर जिन बच्चों में ये सारे डिफेक्ट्स चल रहे हों, ये सारी कॉजेज़ चल रही हों, तो उन बच्चों में आमतौर पर स्ट्रैबिस्मस जो है वो हो सकता है। कैटरेक्ट और आई इंजरी जिनको हुई हो दैट अफेक्ट्स विजन कैन ऑल्सो कॉज द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन विद स्ट्रैबिस्मस however have none of these problems। ठीक है। स्ट्रैबिस्मिक एम्ब्लायोपिया, गुड विजन डेवलप्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड व्हेन बोथ आईज हैव नॉर्मल अलाइनमेंट। स्ट्रैबिस्मस may cause reduced vision or amblyopia in the misaligned eye. The brain will pay attention to the image of the straight eye and ignore the image of the crossed eye. If the same eye is constantly ignored during early childhood, this misaligned eye may fail develop good vision or may even lose vision, or strabismic amblyopia occurs in approximately half of the children who have strabismus। तो ऐसे होता है कि एक आँख जो है वो सही इमेज दे रही होती है, दूसरी जो है इन क्रॉस्ड आई जो होती है आमतौर पर ब्रेन उसको जो है वो कॉन्स्टेंटली इग्नोर कर रहा होता है। लेकिन अगर इसके करेक्शन ना कराई जाए एक आँख की तो फिर क्या होता है कि पेशेंट को जो बच्चा होता है उसको स्ट्रैबिस्मस हो सकता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं डिफरेंट आइज़ हैं, ये नॉर्मल हैं, नॉर्मल स्क्विंट आइज स्ट्रैबिस्मस। अब यहाँ पर नॉर्मल आइज़ हैं, इनकी अलाइनमेंट देखिए बिल्कुल प्रॉपर अलाइनमेंट में आपको नज़र आ रही हैं। अब एसोट्रोपिया में देखिए कि आई टर्न्स इनवर्ड्स, आई जो हैं वो अंदर की तरफ को मूव कर रही हैं, जबकि ये देखिए दोनों आईज़ अंदर की तरफ को मूव कर रही हैं। अब यहाँ पर देखिए कि ये वन आई जो है बाहर की तरफ को मूव कर रही है, यहाँ पे वन आई अंदर की तरफ को, ये इसको कहते हैं एसोट्रोपिया
एक्सोट्रोपिया। और अगर इसको देखें तो यहाँ पर देखिए कि आई टर्न्स डाउनवर्ड्स, यहाँ एक आंख नीचे की तरफ को मूव कर रही है और यहाँ एक आंख ऊपर की तरफ को मूव कर रही है, यहाँ बाहर की तरफ को मूव कर रही है और यहाँ पर अंदर की तरफ को मूव कर रही है। जब अंदर की तरफ को मूव कर रही है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोट्रोपिया। जब बाहर की तरफ को मूव करती है तो एक्सोट्रोपिया, और जब डाउनवर्ड मूव करती है तो हाइपोट्रोपिया, और जब ऊपर की तरफ को मूव करती है तो हम कहते हैं हाइपरट्रोपिया। अच्छा जी, एम्ब्लायोपिया कैन बी ट्रीटेड बाय पैचिंग और ब्लरिंग द स्ट्रॉन्गर आई टू स्ट्रेंथन एंड इम्प्रूव विजन इन द वीकर आई। तो कोशिश की जाती है कि जो सही आँख होती है उसको पैच कर दिया जाए, और जो अनकरेक्टेड आई होती है जो उसको कोशिश की जाती है कि पेशेंट के उससे एक्सरसाइज वगैरह कराई जाती है ताकि पेशेंट उससे सही को देखने की कोशिश करे, एफर्ट करे और वो सही काम करना शुरू कर दे। Treatment is usually successful, and if treatment is delayed, amblyopia may becomes permanent. As a rule, the earlier amblyopia is treated, the better the result for vision. जितना जल्दी उसको हम करेंगे उतना ही बेहतर इसका रिजल्ट आएगा। What are the types of horizontal strabismus? जो horizontal strabismus होता है उसकी क्या टाइप्स होती है? एसोट्रोपिया इज इनवर्ड टर्निंग ऑफ द आई। एसोट्रोपिया में क्या होता है कि आँख जो है वो अंदर की तरफ को मूव कर रही होती है। क्रॉस्ड आइज इसको कहते हैं। टाइप्स ऑफ एसोट्रोपिया इंक्लूड इन्फेंटाइल एसोट्रोपिया, अकोमोडेटिव एसोट्रोपिया एंड रिलेटेड टू फार साइटेडनेस एंड सिक्स नर्व पाल्सी। एक्सोट्रोपिया इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब आउटवर्ड टर्निंग ऑफ द आई, जैसे कि अभी हमने देखा। What are the types of vertical strabismus? The term hypertropia and hypotropia are used to describe vertical misalignment. जो वर्टिकल मिसअलाइनमेंट होती हैं उसमें हाइपरट्रोपिया और हाइपोट्रोपिया आते हैं। जो हॉरिजॉन्टल थी उसमें हमने देखा कि कौन कौन सी टाइप है। एसोट्रोपिया, एसोट्रोपिया में जो एसोट्रोपिया है, और जो अगर हम बाहर की तरफ को हमने देखा था कि वो बाहर की तरफ को मूव करे तो हम कहेंगे एक्सोट्रोपिया, बाहर की तरफ को मूव करे तो एक्सोट्रोपिया। ठीक है, अभी हमने देखा था ये जो हमने जो पिक्चर देखी थी उसमें ये क्लियर हो गया था। अब वर्टिकल को देखें तो वर्टिकल में जो टर्म इस्तेमाल हो रही है वो है हाइपरट्रोपिया, एंड हाइपरट्रोपिया आर यूज्ड टू डिस्क्राइब वर्टिकल मिसअलाइनमेंट। हाइपरट्रोपिया इज एन एबनॉर्मल आई हायर देन द normal eye. Hypertropia is when the abnormal eye is lower than the normal eye. The term can generally be interchanged depending upon which eye is being described. जी आगे, हाउ स्ट्रैबिस्मस डायग्नोस्ड है, डायग्नोस कैसे किया जाता है? अ डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री कैन डायग्नोस स्ट्रैबिस्मस थ्रू अ कॉम्प्रिहेंसिव आई एग्जाम्स टेस्टिंग फॉर स्ट्रैबिस्मस विद स्पेशल एम्फसाइज ऑन हाउ द आईज focus and move, may include patient history. A doctor of optometry will ask the patient or patient about any current symptoms. Addition, the doctor will note any general health problems, medication, environmental factors that may be contributing to the symptoms. इसके अलावा विजुअल एक्विटी को चेक किया जाएगा कि पेशेंट की जो विजुअल एक्विटी है वहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। डॉक्टर ऑप्टोमेट्री विल मेजर विजुअल एक्विटी टू असेस हाउ मच विजन इज बीइंग अफेक्टेड। For the test, you will be asked to read letters or reading charts that are near and are distance. Visual acuity is written as a fraction such as 20/40. The top number is the standard distance at which testing is done, 20 feet. The bottom number is the smallest letter size you were able to read at the 20-foot distance. A person with 20/40 visual acuity would have to get within 20 feet of a letter that should be seen clearly at 40 feet normal distance. Visual acuity is 20 by normal acuity जो है वो 20/20 होती है। Refraction, a doctor of optometry can conduct a refraction to determine the appropriate lens power. You need to compensate for any refractive error, nearsightedness, farsightedness, or astigmatism. Using an instrument called a phoropter, the doctor places a series of lenses in front of your eyes and measures how they focus light using a handheld light instrument called a retinoscope, or the doctor may use an automated or handheld instrument that evaluates the refractive power of the eye without the patient needing to answer any questions.
Alignment and focusing testing. Your doctor of optometry need to assess how well your eyes focus, move and work together. To obtain a clear single image of what you are viewing, your eyes must effectively change focus, move and work in union. This testing will look for problems that keep your eyes from focusing effectively or make it difficult to use both eyes together. अमूमन होता ही है ना कि हमारी दोनों आंखें जब हम किसी राइट साइड पर देख रहे हैं तो यूनियन के साथ दोनों आंखें राइट साइड पे जा रही हैं, अगर हम लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं तो दोनों आंखों की अलाइनमेंट लेफ़्ट साइड पे होगी, ऊपर देख रहे हैं तो दोनों आंखों की जो मूवमेंट है वो अपवर्ड होगी, नीचे देख रहे हैं तो नीचे की तरफ को दोनों आंखों की मूवमेंट होगी, मतलब उन दोनों में यूनियन होती है, दोनों आंखों में यूनियन होती है जब वो नॉर्मल होती हैं, दोनों आंखों की अलाइनमेंट बिल्कुल सेम होती है। लेकिन जब स्ट्रॉबिज्मस होता है, स्क्विंट होता है, तो क्या होता है कि एक आंख या तो अंदर की तरफ को चली जाती है, एक आंख या तो बाहर की तरफ को चली जा मूव करती है, एक आंख या ऊपर की तरफ को मूव करना शुरू कर देती है और एक या फिर नीचे की तरफ को मूव करना शुरू कर देती है। तो और यहाँ पर डेविएट कर रही होती है, और ये डेविएशन जो कॉस्मेटिकली भी बहुत जो पेशेंट है उसको बहुत ही एम्बैरसमेंट फील हो रही होती है और देखने में भी उसको मुश्किल आ रही होती है, और फिर बायनोकुलर विजन में भी इशू आता है। Examination of eye health. Using various testing procedures, your doctor or optometry will observe the internal and external structures of your eyes to rule out any disease that may be contributing to strabismus. This testing will determine how the eyes respond under normal seeing conditions. For patients who can't respond verbally or when some of the eye's focusing power may be hidden, your doctor may use eye drops. The eye drops टेम्पोरली कीप द आई फ्रॉम चेंजिंग फोकस ड्यूरिंग टेस्टिंग, मतलब टेस्टिंग में फिर वो फोकस नहीं कर पाती, वो ड्रॉप्स डालते हैं और फिर चेक करते हैं, टेस्टिंग होती है कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। हाउ इज स्ट्रॉबिज्मस ट्रीटेड? तो हाउ इज स्ट्रॉबिज्मस ट्रीटेड, जो स्ट्रॉबिज्मस है उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है? उसकी ट्रीटमेंट से पहले हम इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं कि स्ट्रॉबिज्मस क्या है। स्ट्रॉबिज्मस जो है मिसअलाइनमेंट होती है विजुअल एक्सिस की, दोनों आंखों के विजुअल एक्सिस की, उसको स्क्विंट कहा जाता है, स्ट्रॉबिज्मस कहा जाता है जब दोनों आंखों के विजुअल एक्सिस जो है उनकी मिसअलाइनमेंट हो जाए। और इसको आमतौर पर इसकी क्लासिफिकेशन की जाए तो ये स्यूडो स्ट्रॉबिज्मस है और लेटेंट स्क्विंट होता है और मैनिफेस्ट स्क्विंट होता है। जो मैनिफेस्ट स्क्विंट है उसको कॉनकॉमिटेंट और इनकॉमिटेंट स्क्विंट कहा जाता है। उसकी दो टाइप्स होती हैं। स्यूडो स्क्विंट जो होता है आमतौर पर इट इज़ द कंडीशन इन विच विजुअल एक्सिस आर इन फैक्ट पैरेलल बट द आईज अपीयर टू हैव स्क्विंट, मतलब वैसे तो पैरेलल ही होता है विजुअल एक्सिस, लेकिन बज़ाहिर जो है वो आंखें स्क्विंट नज़र आती हैं। अच्छा जी, जब हम लेटेंट स्क्विंट की बात करें हेट्रोफोरिया में ये होता है कि इट इज़ द कंडीशन वेयर देयर इज़ अ टेंडेंसी फॉर मिसअलाइनमेंट डेविएशन ऑफ द आईज विच इज़ केप्ट लेटेंट बाय फ्यूजन मैकेनिज्म। तो ये फ्यूजन मैकेनिज्म की वजह से ऐसा होता है कि जो दोनों आंखों की जो डेविएशन है या मिसअलाइनमेंट है उसकी टेंडेंसी होती है। इसमें आमतौर पर एसोफोरिया हो सकता है और हाइपरमेट्रोप्स जो होते हैं उनको होता है आमतौर पर एसोफोरिया होता है टेंडेंसी ऑफ द आई बॉल टू डेविएट इनवर्ड, जब आँख अंदर की तरफ को मूव करती है तो इसकी हेट्रोट्रोपिया की एक टाइप है कि जब आँख अंदर को मूव करती है इसको एसोफोरिया कहा जाता है। आमतौर पर यंग बच्चों में होता है और ये हाइपरमेट्रोप्स में होता है। एक्सोफोरिया वो होता है जिसमें आई बॉल जो है वो बाहर की तरफ को डेविएट करता है, ये आमतौर पर मायोप्स में होता है। और आमतौर पर होता है ये कि हेट्रोफोरिया जो है उसमें भी सर में दर्द होता है, फोटोफोबिया होता है, रोशनी से डर लगता है और ब्लरिंग ऑफ विजन होती है और वक्फे वक्फे से ऐसा होता है। जबकि जो हेट्रोट्रोपिया है मैनिफेस्ट स्क्विंट है इसकी दो टाइप्स हैं, कॉमिटेंट और नॉन कॉमिटेंट। जो हेट्रोट्रोपिया है मैनिफेस्ट स्क्विंट जिसकी हम बात कर रहे हैं तो इसमें आमतौर पर कन्वर्जेंट स्क्विंट होता है, डाइवर्जेंट स्क्विंट होता है, अपवर्ड डेविएशन है, डाउनवर्ड डेविएशन है, अपर एंड वर्टिकल कॉर्नियल मेरिडियन है, अपर एंड वर्टिकल कॉर्नियल मेरिडियन। जैसे कि मैं पहले आपको समझा चुकी हूँ
कि जो आँख की डिफरेंट जो गेज़ की डायरेक्शंस होती हैं जब वो एक दूसरे से डेविएट कर रही होती हैं, वैसे तो ये होता है कि दोनों आँखें एक ही गेज़ में एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, लेकिन जब स्क्विंट होता है किसी मसल्स के ख़राब होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि दोनों आँखें एक दूसरे से यूनियन में काम नहीं करती बल्कि डेविएट करना शुरू हो जाती है एक आँख। तो जो हेट्रोट्रोपिया है, मैनिफेस्ट स्क्विंट है, उसमें क्या होता है कि एक आँख जो है वो या तो अंदर की तरफ को मूव करेगी या बाहर की तरफ को। तो इसमें हमने टाइप्स देखी कि एसोट्रोपिया जो है उसमें क्या होता है, कन्वर्जेंट स्क्विंट होता है। एक्सोट्रोपिया में क्या होता है कि डाइवर्जेंट स्क्विंट होता है। मतलब एक्सोट्रोपिया में बाहर की तरफ को मूव करती है और एसोट्रोपिया में आंखें जो भी आंख डेविएट करेगी वो अंदर की तरफ को। एसोट्रोपिया में आंख अंदर की तरफ को मूव करती है और एक्सोट्रोपिया में बाहर की तरफ को मूव करती है। हाइपोट्रोपिया में आंख जो है वो ऊपर की तरफ को मूव करेगी और हाइपोट्रोपिया में आंख नीचे की तरफ को मूव करती है। इन साइक्लोट्रोपिया में यह होगा कि वर्टिकल कॉर्नियल मेरिडियन में मूव करेगी, ठीक है, नेज़ल की साइड पे मूव करेगी, ठीक है, नाक की साइड पे मूव करेगी वर्टिकल कॉर्नियल मेरिडियन में। और जो एक्स साइक्लो में होगा कि बाहर की तरफ को मूव करेगी, वर्टिकल कॉर्नियल मेरिडियन में मूव करेगी, ठीक है, अपर एंड पे। अच्छा, तो इसकी हमने कॉमिटेंट और नॉन कॉमिटेंट की बात की थी, तो जिसे पैरालिटिक और नॉन पैरालिटिक भी कहा जाता है। तो थोड़ा सा इसको भी अगर मैं डिफ़ाइन कर दूं कि पैरालिटिक क्या है और नॉन पैरालिटिक क्या है। पैरालिटिक में ये होता है कि आँखों की जो डेविएशन है वो डेविएशन इज़ इर्रेगुलर एंड वेरीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ गेज़, कि इसमें जो डेविएशन होती है दोनों आँखों की वो इर्रेगुलर होती है और गेज़ की डिफरेंट डायरेक्शंस में वेरी करती है। जबकि जो नॉन पैरालिटिक है, जिसको कॉमिटेंट भी कहते हैं, इट इज़ द डेविएशन ऑफ आइज़ वेयर डेविएशन रिमेन्स द सेम इन ऑल डायरेक्शंस ऑफ गेज़। इसमें ये होता है कि गेज़ की तमाम डायरेक्शंस में जो डेविएशन है वो सेम रहती है। तो जो नॉन पैरालिटिक और पैरालिटिक जो हमने उसको भी बता दिया कि कॉमिटेंट कौन सी है, नॉन कॉमिटेंट। कॉमिटेंट में जो गेज़ की तमाम डायरेक्शंस में सेम रहती है डेविएशन, जबकि जो पैरालिटिक है उसमें जो गेज़ की डायरेक्शंस हैं वो डिफरेंट वो होती है, डेविएशन डिफरेंट हो जाती है। अच्छा, इसमें भी एक्सोट्रोपिया है, एसोट्रोपिया है और एसोट्रोपिया जैसे कि पहले भी बताया गया है कि आंख अंदर की तरफ को मूव करती है और एक्सोट्रोपिया में बाहर की तरफ को मूव करती है। और इसकी मेन वजह वही रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं, हाइपरमेट्रोपिया है, मायोपिया है, स्टिग्मेटिज्म है। ये एरर ऑफ रिफ्रैक्शन जो है इसकी वजह होती हैं। इसके अलावा मसल्स का प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है, अकोमोडेशन के इश्यूज़ आ जाते हैं। तो ये तमाम जो हैं, कैटरैक्ट भी इसमें एक वजह हो सकती है, रेटिना की डिज़ीज़ हो सकती हैं, ये तमाम डिज़ीज़ जो है इनकी वजह हो सकती हैं। तो अगर हम इसकी ट्रीटमेंट पे अब हम देखते हैं तो ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है कि पीपल विद स्ट्रैबिस्मस हैव सेवरल ट्रीटमेंट ऑप्शंस टू इम्प्रूव आई अलाइनमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। दे इंक्लूड आई ग्लासेस, कॉन्टैक्ट lenses. This may be the only treatment needed for some patients. Prism lenses, these special lenses are thicker on the one side than the other. The prism alter the light entering the eye and reduce how much turning the eye must do to view objects. Sometimes the prisms can eliminate the eye turning. विजन थेरेपी भी कराई जाती है। योर डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री माइट प्रिस्क्राइब अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम ऑफ विजुअल एक्टिविटीज़ टू इम्प्रूव आई कोऑर्डिनेशन एंड आई फोकसिंग। विजन थेरेपी ट्रेन्स द आई एंड ब्रेन टू वर्क टुगेदर more effectively. These eye exercise can help problems with eye movement, eye focusing and eye learning and reinforce the eye brain. इसके अलावा ट्रीटमेंट कैन अकर इन योर डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्रीज ऑफिस एज वेल एज एट होम। इसके अलावा मसल्स की सर्जरी भी की जा सकती है। सर्जरी कैन चेंज लेंथ और पोजीशन ऑफ द मसल्स अराउंड द आईज सो द appear straight. Often people who have eye muscle surgery will also need vision therapy to improve eye coordination and to keep the eyes from becoming misaligned again. जी बहुत शुक्रिया। आज का लेक्चर था एस्टिग्मेटिज्म या क्रॉस्ड आइज़ के बारे में, जिसमें हम बात करते हैं कि मसल्स की कोई इशू हो जाता है या फिर हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, एरर ऑफ रिफ्रैक्शन चल रही होती है, उनकी वजह से
जो है ये स्ट्रॉबिस्मस से स्क्विंटिंग आई स्क्विंटिंग हो जाती हैं, क्रॉस्ड आइज़ हो जाती हैं, जिसमें आइज़ की अलाइनमेंट जो है वो नहीं रहती, मिस अलाइनमेंट हो जाती है, और फिर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है, सर्जरी भी की जा सकती है इसकी, और फिर डिफरेंट एक्सरसाइज हैं जिनके ज़रिए से इसको विज़न को बेहतर करने की कोशिश की जाती है, और जो एक कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट होती है उसको भी कोशिश की जाती है कि बेहतर किया जा सके। जी शुक्रिया।